Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, class 12, subject Business Studies, chapter 7, Directing. As we discuss from previous videos the elements of directing, and the fourth element is communication, and communication is very crucial element of directing, and the directing is all about communication. When communication is good, directing is also its function in an organization towards achievement of goal. In previous video we talked about the forms, various types of directing, and there were two types of directing: formal communication and informal communication. In previous video we described the formal communication and its various types. In this video we are going to describe informal communication or grapevine. As we know that formal communication is the official communication of an organization, and informal communication is that communication which maybe arise within organization among workers on the basis of their own interest and their own groups were made informal communication. Thus, it takes place, informal communication. What is informal communication? It is also known as grapevine. It takes place in an organization without following the formal lines of communication. इसका ऑफिशियल रूल रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में anyone can communicate with anyone or other persons. It takes place in an organization without following the formal lines of communication. Such type of communication usually takes place among the workers to exchange their views and to satisfy their social needs. As we know that informal organization is is called that friendship, that mutual understanding which get generated within organization among workers with time period, and that is that is a need of social and mental needs of workers, that they can talk with each other and distribute their ideas, views and satisfy their social needs. Networks of informal communication. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के चार मुख्य नेटवर्क होते हैं. जैसे कि हमने पहले भी कहा आपको कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के चार मुख्य नेटवर्क होते हैं, उसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी चार मुख्य नेटवर्क होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क. सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क है. इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट विथ अनदर इन ए सीक्वेंस. तो ए बी से कम्युनिकेट कर रहा है, बी सी से और सी डी से. सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क इज ए जनरल network of informal communication in which a person's talk in a sequence and each person communicate with another in a sequence, and that is a single strand network. That is the very first form of informal communication. The second word gossip network. gossip के बारे में हम लोग सुनते हैं. gossip network में कोई भी कहीं भी अपने समूह में बात कर सकते हैं और सभी से वो एक साथ बात करते हैं समूह में. खास करके ये फ्रेंड सर्कल होते हैं और इसमें ये बात करते हैं, तो ये गॉसिप नेटवर्क होता है वर्कर्स के बीच. इन दिस नेटवर्क वन पर्सन कम्युनिकेट विथ ऑल एट सेम टाइम. यानी एक व्यक्ति अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में जब किसी बात को रखता है, जब कम्युनिकेट करता है और सभी से एक साथ जब वो कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग गॉसिप नेटवर्क कहते हैं. इन दिस नेटवर्क वन पर्सन कम्युनिकेट विथ ऑल एट सेम टाइम. तीसरा है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. संभावना है जिसकी. इन दिस नेटवर्क एनीवन कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन एल्स रैंडमली. यानी कोई भी किसी से, कोई भी वर्कर, ये जो नहीं है कि वो उनके ग्रुप का हो, फ्रेंड सर्कल का हो. इस नेटवर्क की खासियत ये है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क की कि इसमें कोई भी वर्कर किसी से भी कोई भी बात कह सकता है, और इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी नेटवर्क कहते हैं. इसमें कौन किससे कहेगा या किससे वो संवाद कर सकता है, इसका कोई निश्चित
लाइन नहीं होता है, निश्चित कोई आइडिया नहीं होता है. इन दिस नेटवर्क एनीवन कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन एल्स रैंडमली. देखिए यहाँ सी बी से बोला, बी ए से बोला, ए डी से बोला, ए ई से बोला, जी ए से बोला और एफ ए से बोला. तो ये प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है. इसमें रैंडमली कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. चौथा है डी, क्लस्टर नेटवर्क. क्लस्टर नेटवर्क में ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति केवल उन्हीं लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है या करता है जिस पर वो विश्वास करे, और जरूरी नहीं है कि वो ये कम्युनिकेशन सबसे करे. यहाँ देखिए ई और एफ को छोड़ दिया गया है और ए जो है वो बी से कम्युनिकेट कर रहा है, डी जो है ए से कम्युनिकेट कर रहा है और ए सी से कम्युनिकेट कर रहा है. लेकिन सी, बी, ए और डी इनमें से कोई भी ई या एफ से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. तो वो इन दिस नेटवर्क एन इंडिविजुअल कम्युनिकेट विथ ओनली दोज पर्सन whom he trust. यानी इस नेटवर्क में, क्लस्टर नेटवर्क में, एक व्यक्ति केवल उन्हीं से कम्युनिकेट करता है जिसपे वो विश्वास करता है. और ये जरूरी नहीं है कि वो सब, अगर उसका फ्रेंड सर्किल भी है तो उसमें भी वो केवल उन्हीं से बात करेगा जिसपे वो विश्वास करता है, बाकी को नहीं, बाकी से वो बात नहीं करेगा. ये गॉसिप से अलग होते हैं. तो इस तरह से दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. Directing the overall chapter will get with this video because this is the last topic of directing chapter, informal communication. तो इसमें communication जो है ये चौथा एलिमेंट था और इसमें हमने communication के इम्पोर्टेंस को देखा, फीचर्स को देखा, उसके टाइप्स को देखा, इनफॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने बताया था कि उसका दो टाइप होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बाद फिर उसके नेटवर्क चार थे, चार सिंगल चेन नेटवर्क और सर्कुलर फ्लो नेटवर्क, फ्री फ्लो नेटवर्क, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क थे. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली टेक प्लेस अमंग द वर्कर्स टू एक्सचेंज देयर व्यूज एंड टू सेटिस्फाई देयर सोशल नीड्स, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं जिसको किसी भी ऑफिशियल लाइन को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है. इस नेटवर्क, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के चार नेटवर्क होते हैं. पहला सिंगल स्टैंड नेटवर्क जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सीक्वेंस में बात करता है, और दूसरा गॉसिप नेटवर्क, इसमें कोई भी अपने समूह में बात को रखता है एंड एवरीवन लिसन दैट कम्युनिकेशन. और तीसरा प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, इसमें कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है रैंडमली और इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है. और क्लस्टर नेटवर्क जिसमें एक व्यक्ति केवल उन्हीं से कम्युनिकेट करता है जिसपे वो ट्रस्ट करता हो. तो ये चारों नेटवर्क कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिस्क्राइब द नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. And this is the communication. Overall communication is the very important part of directing chapter and BS, and every several years and most of years the question was asked from this segment. So you all need to be write down it in your homework on fair notebook and also remember it for future exam purpose. And you also have to be draw this chart to clear the network, communication network. So you all have to be remember this chart and types of informal communication network and formal communication network. I hope that you all understand this chapter. Again, I state that you all need to be remember these all topics because these all topics are important for examination. And if in spite of these videos and notes were sent to your on your WhatsApp, in spite of these, if any question must be asked on my WhatsApp, till then take care, stay home, safe home.